الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ KSE 100 انڈیکس کیا ہے اور یہ کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم کامن مسکنسیپشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ KSE 100 انڈیکس میں وہ 100 کمپنیز انکلوڈ ہوتی ہیں جن کا فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن سب سے زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اس کے برعکس بات یہ ہے کہ KSE 100 انڈیکس میں 100 وہ کمپنیز انکلوڈ ہوتی ہیں جو کہ مارکیٹ فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حساب سے بڑی تو ہیں، لیکن اس کے اندر جو KSE کے اندر 35 سیکٹرز ہیں، اس میں ہر سیکٹرز کی ٹاپ 1 کمپنی، لارجسٹ کمپنی بائی فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن پلس 65 اوور آل لارجسٹ کمپنیز بائی فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شامل ہوتی ہیں۔ تو جب ہم 35 پلس 65 کریں گے تو ہمارے پاس 100 فرمز وہ آ جائیں گی جو کہ KSE 100 انڈیکس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ KSE کے لسٹ آف سیکٹرز ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹل جو KSE کے اندر سیکٹرز ہیں وہ ہے 36۔ تو جو پہلے نمبر پہ ہے اوپن اینڈ میوچل فنڈز، ان کو نکال کے ہر سیکٹر کی، جو ہمارے پاس باقی 35 سیکٹر رہ جاتے ہیں، ہر سیکٹر کی جو لارجسٹ کمپنی ہے بائی فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن، اس کو ہم KSE 100 انڈیکس میں ایڈ کرتے ہیں۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے اگر آپ یہاں پہ آئیں اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ، یہاں پہ ہمارے پاس اسٹاک سکرینر ہے۔ آپ یہاں پہ جا کے اگر انڈیکس کے اندر KSE 100 انڈیکس شامل کریں، 100 انڈیکس کو سلیکٹ کریں، یہاں پہ آپ کے پاس وہ تمام کمپنیز آ جائیں گی جو KSE 100 انڈیکس میں انکلوڈ ہیں۔ تو اگر آپ یہاں پہ جا کے سیکٹر میں جا کے آپ کسی بھی سیکٹر کو کلک کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کم از کم، جیسے یہاں پہ میں نے کمرشل بینکس کیا تھا، ہمارے پاس یہاں پہ 8-10 بینکس آ گئے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ لیدر کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فرم آ گئی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ کوئی بھی سیکٹر سلیکٹ کریں گے تو آپ کو اس سیکٹر میں کم از کم ایک فرم یا ایک کمپنی لازمی نظر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ KSE 100 انڈیکس کا سلیکشن کرائٹیریا ہے۔ جیسے یہاں پہ میں نے ٹیکسٹائل ویونگ سلیکٹ کیا تو ہمارے پاس صرف ایک فرم آ رہی ہے یہاں پہ۔ اگر میں یہاں پہ کوئی بھی کرتا ہوں، ٹرانسپورٹ کرتا ہوں، تو یہاں پہ ایک ہی آ رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بہت سی ایسی فرمز ہوں جن کا مارکیٹ فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن اس کمپنی سے زیادہ ہو، لیکن اس سیکٹر کے اندر یہ کمپنی ٹاپ پہ ہے تو اس لیے یہ کمپنی KSE 100 انڈیکس میں شامل ہے۔ تو اگر آپ نے ساری کمپنیز دیکھنی ہے تو آپ یہاں پہ جا کے صرف سلیکٹ پہ کلک کر دیں تو آپ کے پاس ساری کمپنیز آ جائیں گی۔ تو KSE 100 انڈیکس میں بیسیکلی کیا ہے، ہر سیکٹر کی لارجسٹ کمپنی بائی فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن اور اس کے بعد اوور آل 65 لارجسٹ کمپنیز شامل ہے۔ تو بیسیکلی KSE 100 انڈیکس بنانے کا پرپس یہ ہے کہ یہ جو ٹاپ ہماری کمپنیز ہیں یہ تقریباً مارکیٹ کا اوور آل کیپٹلائزیشن کا 80 to 90% ہمیں شو کر دیتی ہیں کہ اوور آل مارکیٹ کی پرفارمنس کیا گئی ہے۔ یہ ایک انڈیسز ہے، انڈیکس ہے، تو جس کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل مارکیٹ کیسی گئی ہے۔ تو اب اس ویڈیو کے اندر ہم مین 3 ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے پہلا ہے کہ فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ KSE 100 انڈیکس کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد KSE 100 انڈیکس نے اوور آل اب تک کیسا پرفارم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کسی بھی کمپنی کے ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرز۔ آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرز کیا ہوتے ہیں؟ جو اس کمپنی نے ایشو کیے ہوتے ہیں پبلک کو یا کسی بھی اس کمپنی نے اوور آل وہ شیئرز ایشو کیے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایک کمپنی ہے اس نے 1 لاکھ شیئرز ایشو کیے ہوئے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، اس میں سے اس کمپنی کے ڈائریکٹرز یا سپانسر نے جو شیئر لیے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے پاس کوئی شیئرز ہیں، کنٹرولرز یعنی کہ کنٹرولنگ انٹرسٹ، یعنی کہ جس طرح بینک آف پنجاب ہے، اس کا 51% شیئرز پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے، وہ اس کا کنٹرولنگ انٹرسٹ ہے، تو ہم اس میں سے وہ بھی مائنس کر دیں گے۔ شیئرز ہیلڈ بائی ایسوسیٹڈ کمپنیز، اس کے بعد کراس ہولڈنگز، شیئر ہیلڈ
बाय जनरल पब्लिक इन फिजिकल फॉर्म, जो फिजिकल फॉर्म है वो भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम देखते हैं ओवरऑल इस कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हुए हैं और ये सब चीजें माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाता है 10,000। तो ये है फ्री फ्लोट, यानी कि ये वो शेयर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में हर वक्त ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होते हैं अगर सेलर बेचना चाहे तो, यानी कि ये वो शेयर्स हैं जिनकी स्टॉक मार्केट में नॉर्मल ट्रेडिंग होती रहती है 1 लाख में से। बाकी जो 90,000 है वो क्लोजली हेल्ड है, वो गवर्नमेंट या कंट्रोलर या फिजिकल फॉर्म में है, वो इजीली वो लोग सेल आउट उनको नहीं करते, तो इसलिए हम फ्री फ्लोट निकालते हैं। तो फ्री फ्लोट शेयर्स कितने हमारे पास है इस कंपनी के? 10,000। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ पे कहा है फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर्स हैं 10,000, तो हम मार्केट प्राइस देखेंगे इस कंपनी की कितनी है। फॉर एग्जांपल उस कंपनी की मार्केट प्राइस है 50, तो हम क्या करेंगे, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए 10,000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 500,000, यानी कि उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 500,000 या 5 लाख रुपए है। तो हम देखेंगे जिन कंपनीज के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होंगे उनको हम सिलेक्ट करेंगे वाइल सिलेक्टिंग कंपनीज फॉर KSE 100 इंडेक्स। तो एक और चीज है, जो फ्री फ्लोट बैंड्स हैं जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी डिफाइंड है, वो इस तरह है कि अगर किसी कंपनी के फॉर एग्जांपल फ्री फ्लोट शेयर्स 5% से कम में है तो उसको हम फ्री फ्लोट जो बैंड है वो फैक्टर 0.05 या फिर 5% का दे देते हैं, स्टॉक मार्केट देती है बेसिकली जो रूल्स है। अगर किसी के 5 से 10% के दरमियान में है तो उसको 0.1 या फिर 10% का बैंड मिल जाएगा। इसी तरह 20 फैक्टर्स या 20 हमने बैंड्स बने हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। इस तरह यहाँ पे 0.95 है तो 95%, यानी कि क्या मतलब है, इस कंपनी के जो फ्री फ्लोट शेयर है वो 90 से 95% के दरमियान में है। इसको कंफर्म करने के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे आए, आप यहाँ पे देखें हमारे पास एक कंपनी है हबीब मेट्रोपॉलिटन। अगर आप इस कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर देखेंगे वो 45% है। आपको किसी भी कंपनी के जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं अगर आप उसके परसेंटेज देखेंगे, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 5% है नेस्ले का, इसी तरह अगर आप MLCF का देखेंगे मैपल लीफ का, तो इसका फ्री फ्लोट 45% है। यानी कि हमारे पास जितनी भी इसके अंदर स्टॉक मार्केट में कंपनियां हैं उनके जो फ्री फ्लोट है वो परसेंटेज में राउंड फिगर्स में दिए गए होते हैं, 5%, 10%, 15, 20, 25, यानी कि 5% के हिसाब से। अगर किसी कंपनी के 45% फ्री फ्लोट लिखे हुए हैं तो उसका क्या मतलब है, उस कंपनी के जो एक्चुअल फ्री फ्लोट है वो 40 से 45% तक है। तो इस तरह हम फ्री फ्लोट निकाल के उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है कि KSE 100 इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है। अब जब हमें पता चल गया कि हमने फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालना है, तो उसके बाद हम देखते हैं 100 इंडेक्स में कंपनीज कौन कौन सी शामिल करनी है। सबसे पहले हमारे पास रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 के अंदर हमारे पास है कि लार्जेस्ट फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन इन ईच ऑफ 35 कराची स्टॉक एक्सचेंज सेक्टर्स, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के 35 सेक्टर्स हैं, उसमें हर सेक्टर की जो लार्जेस्ट कंपनी है उसको हम इंक्लूड करेंगे, यानी हमारे पास 35 कंपनीज यहां से आ जाएंगी, यानी कि हर सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी KSE 100 इंडेक्स में, एक्सक्लूडिंग ओपन एंड म्यूचुअल फंड सेक्टर, यानी कि हमने ओपन एंड म्यूचुअल फंड सेक्टर को नहीं डालना। हमारे पास 36 सेक्टर्स थे तो बाकी 35 रह गए। उसके बाद क्या, रूल नंबर 2, द रिमेनिंग इंडेक्स प्लेसेस इन दिस केस 35, हमारे पास इंडेक्स में 100 प्लेसेस थी, 35 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं तो बाकी 65 रह गई हैं। दे आर टेकन बाय लार्जेस्ट फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हम देखेंगे उस इन 35 कंपनीज को निकालने के बाद कौन सी कंपनी है जो टॉप 65 में आती हैं। तो टॉप 65 वाली जोन सी हैं उनको हम ले लेंगे और हमारे पास 35 और 65 हमारे पास 100 प्लेसेस पूरी हो जाएंगी KSE 100 इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद रूल नंबर 3 है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि कोई कंपनी सस्पेंड हो गई है या डिफॉल्टर है तो उसको KSE 100 इंडेक्स में उसकी रिकम्पोजिशन में उसको हम उसको शामिल नहीं करेंगे। तो इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है, हमारे पास ये इंडेक्स हमारा बना था 1991 में और इसके बेस पॉइंट थे 1000 एट दैट टाइम। तो इंडेक्स बनता कैसे है, फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे लिया हुआ है हमारे पास कंपनीज है, मैंने यहाँ पे 5 कंपनीज डाली है उसके लिए एग्जाम्पल के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये ओवरऑल वैसे होती है 100 कंपनीज होती हैं,
हम देखेंगे नेस्ले का फ्री फ्लोट फॉर एग्जाम्पल 10,000 है, हेस्कोल का 25,000, मिजान बैंक का 25। ये हम कर रहे हैं हाइपोथेटिकल फिगर डे 1 1991 को जब इंडेक्स बना था। तो क्या होगा, मार्केट वैल्यू हमने देखी 100 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 25 का हो रहा है, 40 का हो रहा है, 100 का हो रहा है। तो हमने देखा कि ओवरऑल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो थी 10 मिलियन। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जो 10 मिलियन है ये 1000 पॉइंट्स के इक्वल है, यानी कि 1000 पॉइंट्स हमारा एक बेस पॉइंट है जो KSE 100 इंडेक्स में यूज होता है। तो अब आप ये देखें, डे 2 पे हम आ जाते हैं। डे 2 में फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मार्क फ्री फ्लोट तो उतने ही रहेंगे नॉर्मली। तो हम देखते हैं मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल नेस्ले की 120 हो जाती है, हेस्कोल की 25 से 20 हो जाती है, मिजान बैंक की फॉर एग्जांपल 45 हो जाती है। तो हर कंपनी की प्राइस कुछ ना कुछ चेंज होती है या उतनी ही रहती है। ये 25 हम कहते हैं उतनी रहती है। अब हम कहते हैं कि ये मार्क इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया फ्री फ्लोट को मार्केट वैल्यू के साथ, तो ये सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और टोटल भी चेंज होगा। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल जो ये 10 मिलियन था आज के दिन हमारा बन रहा है 10.5 मिलियन। अब क्या होगा, हम पहले दिन तो बताना आसान था कि पहले दिन मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 मिलियन था। अब हर वक्त वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, हर दिन हर साल के हिसाब से, तो उसको बेस पॉइंट में एक्सप्रेस करना थोड़ा आसान होता है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारी आज की वैल्यू है डिवाइडेड बाय हमारी जो बेस वैल्यू थी 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय बेस पॉइंट जो हमने 1000 रखे हुए हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1050। यानी कि हम क्या कहेंगे कि आज के दिन मार्केट 50 पॉइंट इंक्रीज हुई है। यानी हम जब कहते हैं कि मार्केट आज 50 पॉइंट इंक्रीज हुई है या 100 पॉइंट इंक्रीज हुई है, उसका क्या मतलब होता है कि ओवरऑल जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस दिन के अंदर इतना इंक्रीज हुआ, तो उसको हमने पॉइंट्स में एक्सप्रेस करके हमने बता दिया। तो अगर हमने परसेंटेज निकालनी है हम क्या करेंगे, 1050 आज का है, कल कितना था 1000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 पॉइंट्स हमने निकालना है, कितनी परसेंटेज हुई है 50 ओवर 1000 जो कल की थी मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5%। यानी कि हम कहेंगे आज के दिन मार्केट 5% इंक्रीज हुई है। इस तरह हम करते हैं निकालने के लिए। तो इस तरह हमारे पास अब होता है कि 1991 के अंदर हमारा बेस पॉइंट था 1000। अगर हमने हमारे पास ये एक रेफरेंस पॉइंट आ गया बेस पॉइंट, बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि 1992 में कितना फर्क पड़ा। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 2000 हो गई, हम क्या कहेंगे डबल हो गई, 100% इंक्रीज हो गया है। 1993 के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाती है 2500। अब हमारे पास दो बेस पॉइंट है, हम 1992 से भी कंपेयर कर सकते हैं कि कितना बड़ा है। तो अगर हम 1992 से कंपेयर करेंगे तो हम 2000 को लेंगे अपना बेस अमाउंट या बेस हमारा होगा। अगर 1991 से लेना तो हमारा 1000 होगा। तो यानी कि ये वो हमारी बेस है जो हमारा इंक्रीज होते होते आज से 2-3 साल पहले 53,000 तक भी पहुंची थी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि KSE 100 इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया है विद टाइम। तो अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज अवेलेबल है। 2001 के अंदर KSE 100 इंडेक्स की जो क्लोजिंग वैल्यू थी 1273 थी। 2002 में 2701 हो गई, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गई। अब ये देखें 2006 में हमारी 10,000 तक गई थी जो क्लोजिंग ये अमाउंट है, ये मैक्सिमम नहीं है, यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यूज है। 2007 में हमारी क्लोजिंग वैल्यू 14,000 थी। इसी तरह अगर आप 2016 में आए तो 47,000 थी। 2020 की जो क्लोजिंग वैल्यू है 43,000 के आसपास है। तो इस तरह हमारे पास KSE 100 इंडेक्स की वैल्यूज आ जाती हैं जिनको हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पर यूज करते हैं, और ये इनकी जो बेस अमाउंट है वो 1000 है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे KSE 100 इंडेक्स का डाटा अवेलेबल है 25 ईयर्स का लास्ट। आप ये देख सकते हैं हमारे पास इस कॉलम के अंदर 5000, 10,000, 50,000 तक की वैल्यूज आ रही हैं। शुरू में तो ये नीचे कम ही रहा। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा 2008 के अंदर 14,000 को टच हुआ था, फिर 2008 के अंदर डिक्लाइन हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में जिस वजह से पूरी दुनिया की मार्केट गिरी थी। फिर ओवरऑल ये गिरती रही, इंक्रीज होती रही पीपल्स पार्टी के दौर में, आगे फिर PMLN के दौर में। यहाँ पे हमारे पास 2016 तक हमारे पास ये गई थी 33,000 पे,
2015 में सॉरी, फिर थोड़ी डिक्रीज हुई, फिर हमारी ये हाईएस्ट वैल्यू जो गई थी अराउंड 53,000 जो हमारी 2017 में गई थी। उसके बाद हमारा यहाँ पे जब गवर्नमेंट चेंज हुई, नवाज शरीफ को उसने कर दिया, गवर्नमेंट उसकी खत्म हो गई, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई कंट्री के अंदर, जिस वजह से मार्केट गिर गई। उसके बाद आगे जो हमारे पास ये फिर गिरने के पॉइंट आ रहे हैं, जब कोरोना आया तो लॉकडाउन वगैरह हुआ, तो एक तो वो बेसिक रीजन थी जिस वजह से मार्केट गिरी। उसके बाद मार्केट दोबारा इंक्रीज हो रही है, इस वक्त 45,931 पॉइंट्स पे है। तो KSE इंडेक्स को हम यहाँ से एक इसका रेफरेंस पॉइंट देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास सेम टेबल है, अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीज है KSE 100 इंडेक्स में एक साल के अंदर, वो सन 2002 में आया, जब ये इंडेक्स 112% इंक्रीज हुआ, यानी कि पिछले साल के निस्बत डबल हो गया। फिर उसके बाद 2003 के अंदर 65% इंक्रीज आया इस इंडेक्स में, 2009 में 60% आया, 2005 में 53% आया, और जो सबसे ज्यादा ये मार्केट गिरी थी 2008 में गिरी थी, जो 58% गिरी थी। क्यों? क्योंकि तब फाइनेंशियल क्राइसिस था। उसके बाद 2001 के अंदर जब ये हमारा परवेज मुशर्रफ आया, तो उस वक्त रेफरेंडम वगैरह हुआ, उस वक्त मार्केट काफी गिरी थी। उसके बाद 2017 में जब नवाज शरीफ नाअहल हुआ था, तो तब 15% मार्केट गिरी थी। 2018 में हमारे इलेक्शंस हो रहे थे, तो कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बनी, इस वजह से मार्केट काफी हमारी गिर गई। तो पाकिस्तान जैसे कंट्री में मार्केट गिरने के लिए पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2008 के अलावा जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, जो मेन रीजन है जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई है या कोई वजीर आजम या जो भी था नाअहल वगैरह हुआ, तो उस वक्त मार्केट बहुत गिरी है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। लेकिन 2002 में जब इंक्रीज हुई थी 112%, तो वो तब था तो 2002 में जिस तरह हम देख सकते हैं कि भाई मार्केट तकरीबन डबल हो गई थी, तब वो इस तरह हुआ था कि परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट स्टेबल हो गई थी, तो उस वक्त उसके पास फुल अथॉरिटी थी, तो उस वजह से थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम हो गई। वैसे भी परवेज मुशर्रफ के दौर में जो 5 साल का था, आप देख सकते हैं 2002, 3, 5 में काफी मार्केट इंक्रीज हुई है, क्योंकि उन दिनों में पाकिस्तान का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो भी इंक्रीज हुई थी, तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी काफी थी। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इसको। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।